Let us see practical number 7, that is share printer and folder in the network and transfer that particular file folder to the another computer. So let us see this theoretical part of the practical, that is file and folder sharing. So the features of this is one of the feature of computer network. To understand and use shared folder and printer after this particular practical. So now we required to have sharing options in our computer system. How to share that file and folder and printer we'll see in a next few minutes. So here we required one printer and then PC. So printer is actually LBP2900 in our computer lab, but we require we will see that. So here share then this is a simple theory. This practical we'll see hands-on practice after this one. So you must select everyone so that everyone can select and share use that particular printer. So you must share that use that everyone. If you not have the printer installed, then you can click this one and install and then share. So these are the three questions. Let us see the hands-on practice of this one. चलो हम फोल्डर और प्रिंटर एंड फाइल का शेयरिंग का एक डेमो देखते हैं. हियर वी हैव कंप्यूटर सिस्टम connecting devices for networking, that is a router, and another computer, that is a laptop. So you can connect this router to this PC and using the straight cable to this PC. Also you can use a straight cross cable between these two computers. So this is a cross cable you can use between these two. So now this is a peer-to-peer network of two computers. Two computers are directly connected with cross cable. You can use this device also, that is a wireless router. So here let us see how we can configure and share the folder and file and printer. So here you just press the button start and you'll find the setting option here, and then look for the network and internet. So here we have Ethernet and change the adapter settings. So you can find these three options. So this is one of the way to go. Then go to the properties, then select the TCP/IP4. Actually there is a 6 also, so select this one. Use the settings. In last practical we had seen this one. So now IP address 192.168.1, and for this PC I will use 2 subnet mask automatically. Okay, close. You can use another option also for selecting the adapter settings. So here you can go through the this is one way. Another way is start button and then go to the control panel. From the control panel you will find the network and sharing option, internet options, network and sharing. So here you can go to the adapter settings. Yes, the same option you can find here, the properties, and like that. So the options are actually we selected already. अब इसके बाद हमें क्या करना है कि और एक ऑप्शन अगर है तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं. तो 3 ऑप्शंस यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं. उसके बाद हम जाएंगे लैपटॉप पे. अब ये लैपटॉप है. अब लैपटॉप पे हम क्या करेंगे, सेम ऑप्शन हम यूज़ करेंगे, नेटवर्क एंड इंटरनेट फ्रॉम द सेटिंग्स and select the adapters, Ethernet and adapter setting.
यहाँ पर हम क्या करेंगे, इथरनेट और 1 और इथरनेट 2 ऐसे 2 है, तो इथरनेट को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर वो सेम सेटिंग यहाँ पे देंगे TCP/IP4 के लिए। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी 3 दे दिया, वहाँ पे पीसी को 2 दिया था, हम इसे 3 देंगे। IP एड्रेस क्लोज करें इसके। अब इसे क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है, पिंग कमांड यूज करना है। तो इसके लिए मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा। कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं क्लिक करूंगा। मैं लैपटॉप पे हूँ अभी फिलहाल, और जिसका IP एड्रेस 3 है, और मुझे देना है पिंग 192.168.1.2। ये जो 2 है वो पीसी का है। अब देखिए रिप्लाई आता है क्या? यस, रिप्लाई तो आ गया कि डेटा सेंट है और रिसीव भी हो गया। मतलब 2 कंप्यूटर्स यहाँ पे अभी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब चलते हैं पीसी पे। अब ये पीसी का डेस्कटॉप है, हम पीसी पे जाएंगे और पीसी पे सेम कमांड यूज करके देखेंगे। पिंग कमांड यूज करेंगे हम वहाँ पे, और इसका IP एड्रेस 2 है, मुझे पता है, हमें पता है 192.168.1.2। तो हमें लैपटॉप का लेना पड़ेगा 192.168.1.3। ये हमें IP एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा। और इसका रिजल्ट देखें, अब रिप्लाई भी आ गया। अब रिप्लाई आने से यहाँ पे ये रिप्लाई आ गया, और देखिए यहाँ पे सेंड कितना हुआ है और रिसीव भी है, और लास्ट कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों कंप्यूटर सभी यहाँ पे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको हम एग्जिट कर देते हैं। या तो डायरेक्टली क्लोज करो, या तो एग्जिट बटन, एग्जिट कमांड दो, हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेटवर्क पे जाना है। नेटवर्क पे जाकर हम देखें, यहाँ पे 2 कंप्यूटर का नेटवर्क बना है। ठीक है ना, एक लैपटॉप है और एक है पीसी, 2 कंप्यूटर्स। ठीक है। अब ये तो अभी यहाँ पे फाइल फोल्डर या फिर फाइल हम शेयर करके देखेंगे। ठीक है। तो एक फोल्डर बनाएंगे हम यहाँ पे, हम बना रहे हैं पीसी पे फोल्डर। ठीक है। मैं देता हूँ यहाँ पे CO4i शेयर, CO4i शेयर। ठीक है। मैं टेस्ट शेयर दे देता हूँ इसको, शेयर। अब यहाँ पर इसको मैं शेयर करूँगा। इसके लिए शेयर करने के लिए क्या करना है, मुझे राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, शेयरिंग ऑप्शन है, और एडवांस शेयरिंग में जाएंगे हम। एडवांस शेयरिंग में यहाँ पे शेयर एज, यहाँ पे क्या नाम देते हैं इसका, सेम नाम रखते हैं, और यहाँ पे ऐड करना है हमें। पहले अलाउ कर लो, ऐड करो। अब यहाँ पे ऐड करने के लिए लोकेशन देखना पड़ेगा, या फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कि यूजर कौन सा है। तो यहाँ पे एडवांस में जाइए, यहाँ पे फाइंड आउट करिए, और यहाँ पे एवरीवन दो, मतलब सभी यूजर जो भी कनेक्टेड है इसको कंप्यूटर, उसको यहाँ पे शेयर मिलेगा। तो यहाँ पे एवरीवन को सिलेक्ट करो और ओके कर दो, और उसके बाद अप्लाई कर दो। ये हो गया, अभी शेयर, ये शेयर हो गया अभी। अब शेयर होने के बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है कंप्यूटर लैपटॉप पे जाना है। लैपटॉप, ये तो पीसी का डेस्कटॉप है, लैपटॉप पे जाते हैं अभी। अब लैपटॉप पे जाने के बाद यहाँ पर मुझे सेम ऑप्शन देना पड़ेगा, दैट इज नेटवर्क। नेटवर्क को सिलेक्ट करो, और यहाँ पे कंप्यूटर दोनों आने चाहिए, जैसे वहाँ पे आया था यहाँ पे नहीं आ रहा है। शायद कोई इश्यू होगा नेटवर्क कनेक्शन का, क्योंकि सेटिंग अलग अलग होती है। लैपटॉप की सेटिंग फायरवॉल ऑन होता है, साथ में इसको अगर हम सर्च करने के लिए देते हैं। अब बहुत हो गया, आधा सर्च हो गया, इसका मतलब ये कुछ होने वाला नहीं, इसको क्लिक कट कर दो। दूसरा ऑप्शन बताता हूं मैं, / और उसका IP एड्रेस 192.168.1 और उसका है 2, मतलब पीसी का कितना है, 2 है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन CO4i ये आ गया। ठीक है ना। तो इसको हम ये शेयर हो गया। अब ये जो ऑप्शन है शेयरिंग का, ये फोल्डर के लिए है। अब प्रिंटर के लिए अगर हम करें तो उसके लिए मुझे और कुछ और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फोल्डर हम शेयर करके देखते हैं जो लैपटॉप पे है, और पीसी पे मैं इसको शेयर करूंगा। तो यहाँ पे एक
फोल्डर है जिसके अंदर 4 असाइनमेंट्स लिखे हैं। तो ये फाइल को मुझे शेयर करना है, ठीक है ना। हमने फोल्डर शेयर किया था, अभी फाइल को शेयर करेंगे। तो सेम ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई करना है आपने। एडवांस शेयरिंग में जाइए आप, शेयर एज फोल्डर, यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं फोल्डर का, परमिशन दे दो और ऐड कर दो यहाँ पे एवरीवन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, या इस ऑप्शन से भी हम जा सकते हैं, एवरीवन, और ऐड कर दो वहाँ पे। तो रजत है वहाँ पे ऑलरेडी एक, और एक एवरीवन आ गया, ये ऑप्शन आ गया यहाँ पे, और इसको क्लोज कर दो, हो गया सेम। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपको मिलेगा, एडवांस शेयरिंग में जाए, यहाँ पे ऐड कर लो, एवरीवन आ गया वहाँ पे, ठीक है। ओके कर दो, क्लोज कर दो। अब जाते हैं हम पीसी पे। अब यहाँ पर सेम ऑप्शन यूज करना है, नेटवर्क को सिलेक्ट करो, 2 कंप्यूटर्स मिलेंगे, लैपटॉप को क्लिक करो, देखो यहाँ पे आ गया, और ये चारों फाइल्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में शेयर हो चुकी है। सो दिस इज द एक्चुअली ऑप्शन फॉर सिलेक्टिंग द शेयर फोल्डर एंड फाइल। यहाँ पर कोई प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, तो प्रिंटर को शेयर करें तो पहले हम क्या करें, 192.168.1.2 ये जो पीसी का आईपी एड्रेस है, हम लैपटॉप से पीसी का आईपी एड्रेस दे रहे हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करो, यहाँ पर प्रिंटर नहीं है, ठीक है ना। अब प्रिंटर नहीं है यहाँ पे, तो मुझे प्रिंटर को शेयर करना है, तो यहाँ पे प्रिंटर आना चाहिए अभी। तो सेम ऑप्शन हम यूज करेंगे, सेम प्रोसीजर, सेम स्टेप्स हम यूज करेंगे पीसी पे जाकर। ये पीसी का स्क्रीन है, यहाँ पर हम जाएं और यहाँ पर हम क्या करें, कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाकर प्रिंटर देखेंगे, डिवाइसेस एंड प्रिंटर ऑप्शन पहले, ठीक है, लेफ्ट साइड में ये प्रिंटर एंड डिवाइस एंड प्रिंटर, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रिंटर्स इतने सारे इंस्टॉल्ड है, अगर हम इंस्टॉल करें ऐड करो तो चलेगा। अब ये ऐड बहुत प्रोसेस है, यहाँ पे ऑलरेडी है प्रिंटर ऐड, तो इसको प्रॉपर्टीज में जाएं आप, प्रिंटर प्रॉपर्टीज में, प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाकर शेयरिंग बटन प्रेस करिए और शेयर प्रिंटर। अब यहाँ पर हम इसको नाम चेंज कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा एक्सटेंशन फॉर CO4 आए, ठीक है, हम ये टाइप कर देते हैं CO4 आए। अब इसके बाद ओके कर दो, फिर इसे शेयर हो गया क्या देखेंगे, यस आ गया, ये सिंबल आता है शेयर का, यस नाउ द प्रिंटर इज शेयर्ड। अब यहाँ पे इसको क्लोज कर दो। अब कहाँ जाएंगे हम, लैपटॉप पे जाएंगे, ये आ गया लैपटॉप का स्क्रीन। अब यहाँ पर वहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है, तो 192.168.1.2 ये हम डालेंगे, जो कि आईपी एड्रेस है पीसी का, क्योंकि नेटवर्क में तो पीसी दिख नहीं रहा हमें। यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखिए अब यहाँ पे प्रिंटर आ गया, ये प्रिंटर, इसको डबल क्लिक करेंगे हम तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस प्रिंटर को हम इंस्टॉल करेंगे हमारे लैपटॉप में, डबल क्लिक करो, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, इंस्टॉल ड्राइवर हो गया। अब ये इंस्टॉल्ड हो गया, ये प्रिंटर आ गया हमारे लैपटॉप में। अब इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब क्या करें, एक फाइल हम ओपन करें और उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल पैनल में अगर हम देखें, लैपटॉप के कंट्रोल पैनल में, तो देखें अब यहाँ पे आपको नाम चेंज, एक प्रिंटर इंस्टॉल मिलेगा, लेकिन कहाँ पे, ऑन दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम। तो उसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.2। तो ये प्रिंटर का प्रिंटर यहाँ पे शेयर्ड प्रिंटर आ गया, हमने प्रिंटर को शेयर कर लिया। अब एक एप्लीकेशन यूज करेंगे, वर्ड यूज करेंगे, एक्सेल यूज, जो भी है, वर्ड यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे, और एक फाइल हम ओपन कर लेते हैं। कौन सी ओपन करूँ, ठीक है, नीचे देखते हैं, फॉर्मेट 5, ठीक है, हम सिलेक्ट करते हैं फॉर्मेट 5। अब ये एक सिंपल कोई भी फाइल है, इस फाइल को मुझे प्रिंट आउट निकालना है, लेकिन ये फाइल यहाँ पे, प्रिंटर किसको कनेक्टेड है, पीसी को। तो ये देखिए यहाँ पे प्रिंट आउट निकालने के बाद, मतलब बटन दबाने के बाद यहाँ पे हमें मिला ऑप्शन, ये इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद प्रिंट आउट निकल जाएगा। सो दिस इज द वे ऑफ सिलेक्टिंग द प्रिंटर
दैट इज रिमोटली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड दैट कैन बी शेयर्ड। फाइल को कैसे शेयर करना है, फोल्डर को कैसे शेयर करना है, इस प्रैक्टिकल में हमने देखा है। ठीक है।